Good morning. Uh, Today we will discuss the topic steam power plant. Before this topic, we have already gone through different types of power plant. Um and the first one was the nuclear power plant, where we talked how the nuclear fission may useful to create electricity. Okay, and how we harness this energy. And then we talked about the diesel power plant. These are very mobile, frequent, and uh, majorly used at the remote places where instant power is required. Okay. Then we talked about the very famous and one of the most important because it is the hydroelectric power plant does not release any harmful radiation or the it does not pollute the environment. So hydroelectric power plant is somewhat very familiar and important, as probably you have studied about the wind turbine power plant and the geothermal energy, so and solar power plant. So these all are the ways in which we don't harm the environment, okay, because there is no release of the pollutant to the environment. Okay, so the fourth one and the very important because it is used for around more than 50% power generation cases around the world, and in India it was uh, carrying a very huge amount, gradually decreasing because the other types of power plants are increasing. Okay, but still, the steam power plant produces more than 60 to 65% of the total energy requirement in the India. So that's why it is very important, and definitely we need to discuss it thoroughly. Okay, so this figure will tell you all the basics, and not only the basics, and it will also tell you about how the devices works. Okay, so majorly this figure is break into four groups. The first one is this A, where we um, close this group to these four devices only: one turbine, second condenser, third pump, and fourth is the boiler. And this is the main schematic of steam power plant. Only the four devices are the main devices. Other devices and other accessories are shown here too, or used in the reality to work with these devices properly. Okay, or the proper working of these devices. So the A is using all these four devices. ये जो बी वाला ग्रुप है, इसमें आपको बॉयलर और बॉयलर से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बताया गया, लाइक बॉयलर का रिमेनिंग पार्ट एंड द स्टेक, चिमनी वगैरह जो होती है. जो ग्रुप सी है, इसमें कंडेंसर से जुड़ी हुई डिवाइसेस के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि कूलिंग टावर है. इट इज़ नॉट ओनली अ डिवाइस, इट इज़ अ बिग स्ट्रक्चर एंड विच रन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, और कूलिंग टावर के अलावा आपको पंप भी यहाँ पर दिख रहा है, जो कि पार्ट सी में आपको दिख रहा है. और जो पार्ट डी है, वो टरबाइन से जुड़ी हुई डिवाइसेस के बारे में रिप्रेजेंटेशन के लिए है, जो कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर और उससे आगे होने वाले प्रोसेस के को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो हम एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, और पहले हम ग्रुप ए को देखते हैं, और देन we'll talk about how the group B, C and D helps the group A devices. ओके, तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको मैंने जो पहले से मैं कहता आया हूँ कि हमेशा जब भी आप कोई साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं, हमेशा आपको एरो के थ्रू रिप्रेजेंटेशन मस्ट है. जैसे आपको यहाँ पर एरोज दिख रहे हैं, तो इससे आपको क्लियर हो रहा है कि टरबाइन के बाद में जो फ्लूइड है वो इधर वाले डिवाइस में गया है, जो कि कंडेंसर है. फिर कंडेंसर के बाद में ये पंप में गया है, फीड वाटर पंप. फीड वाटर पंप के बाद में बॉयलर में गया है, और बॉयलर के बाद में टरबाइन में गया है. ठीक है, यहाँ पर मुझे नंबरिंग की भी रिक्वायरमेंट होगी, ताकि मैं चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूँ. सो दिस इज़ 1 2 3 एंड दिस वन इज़ द फोर्थ. ओके, थोड़ा सा और हम चीज़ों को समझना चाहेंगे. पॉइंट 1 2 3 और 4 पर हम क्या क्या कंडीशंस है, उसको हम समझेंगे. आप सभी को ये बेसिकली पता है
कि जो स्टीम टरबाइन पावर प्लांट होता है, एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पर जो आपका वर्किंग फ्लूइड है वो वाटर होने वाला है, और आप टरबाइन को रन करने के लिए स्टीम का यूज़ करेंगे। तो ये आप सभी को चूंकि पता है, तो मैं इस पर वापस से टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगा, और मैं यहाँ पर कंडीशंस के बारे में ज़रूर यहाँ पर आपको मेंशन करूँगा। तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप भी थोड़ा सा इनको समझते चलें। ओके। और कंडीशंस को फिर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट नंबर वन जो है, इस पॉइंट नंबर वन पे जो आपका सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस, वो अभी लिक्विड फेज में है, एंड द लिक्विड फेज ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वाटर। तो मैंने यहाँ पे डब्ल्यू लिख दिया है। ठीक है। तो ये जो वाटर यहाँ पर अवेलेबल है, इसका प्रेशर भी लो है और टेम्परेचर भी लो है। ठीक है। मतलब एक तरह से जो एम्बियंस में हमें वाटर मिलता है, ये उस वाटर के अप्रोक्सीमेटली वाली कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये जो आपका वाटर है, इसको आपने प्रेशराइज करना है। प्रेशराइज क्यों करना है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बॉयलर में हम जब बॉयलर में जब हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, या वर्किंग फ्लूइड को जब हम भेजते हैं, तो वो हमेशा हाई प्रेशराइज फॉर्म में होता है। ओके। और ये हमने पहले अच्छे से डिस्कस भी किया है कि अगर आप हाई प्रेशर बॉयलर्स की बात कर रहे हैं, तो दीज आर वेरी मच एफिशिएंट एंड गिव्स यू अ वेरी गुड एफिशिएंसी, और आपका जो स्टीम जनरेशन और फ्लो है वो काफ़ी मेंटेन्ड रहता है, रेगुलेटेड रहता है। इसको हम पहले बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ओके। तो ये जो आपका 1 to 2 है, आपने जैसे ही प्रेशराइज किया, तो यहाँ पर टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि आप सभी ने ये पढ़ा भी है कि लिक्विड्स के लिए अगर हम थोड़ा प्रेशर को बढ़ा दें, तो टेम्परेचर में बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज होता है, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फिर भी मैं कहूँ कि अगर कुछ चेंज हो रहा है, तो वो उसको हम कई बार हटा भी लेते हैं, और कई बार मैं इस चीज़ के बारे में आपको आने वाले बाद के फिगर्स में भी एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो फिगर मिलेगा, डेफिनेटली वो लो टेम्परेचर के लिए मिलेगा, ये हाई प्रेशर के लिए मिलेगा, और ये अभी भी वाटर की फॉर्म में ही है, स्टीम कन्वर्जन नहीं हुआ है। तो नो फेज चेंज, ओनली दी लो प्रेशर टू हाई प्रेशर इज द वेरिएशन। ये हाई प्रेशराइज्ड वाटर व्हेन इट गोज टू द बॉयलर, व्हाट हैपेंस, इट कन्वर्ट्स टू स्टीम। ओके। ये हमने पहले पढ़ा है बॉयलर में। पॉइंट नंबर थ्री पर जो आपको सिचुएशन मिलने वाली है, वो कुछ ऐसी होने वाली है कि यहाँ पर हाई प्रेशर ऑलरेडी हमने पहले ही क्रिएट कर दिया था, और अब हमें जो यहाँ पर नई सिचुएशन मिल रही है, वो ये कि आपका टेम्परेचर जो है वर्किंग सब्सटेंस का, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। सो इट इज़ अराउंड वेरी हाई टेम्परेचर, और द हाईएस्ट टेम्परेचर। और ये जो आपका वाटर था, अब ये स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है, एंड वी आर अज्यूमिंग कि ये सुपर हीटेड हो चुका है, ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। और पॉइंट नंबर फोर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू डिस्कस दिस ऑल्सो, कि यहाँ पर आपने जब टरबाइन में इस हाई प्रेशराइज्ड हाई टेम्परेचर वाली ड्राई स्टीम को भेजा, तो टरबाइन में जाने के बाद में ये हाई प्रेशर जो है, ये लो प्रेशर में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि हम टरबाइन के अंदर प्रेशर एनर्जी का ही यूज़ करके दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं। तो हमारा टरबाइन का मेन पर्पस क्या होता है? टरबाइन का मेन पर्पस होता है, तो जो टरबाइन का मेन पर्पस होता है वो हार्नेस करना प्रेशर एनर्जी को, और उसको मैकेनिकल एनर्जी में या रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। यहाँ पर ये जो हाई टेम्परेचर की स्टीम थी, वो अब हमें लो टेम्परेचर की स्टीम में कन्वर्ट होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर हम प्रेशर एनर्जी और टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी, दोनों में कमी देखते हैं टरबाइन के आउटलेट में। और ये जो स्टीम थी, ये स्टीम ही बनी रहेगी। इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर आपको मिल सकता है, और आइडियली हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर आपको मॉइस्चर ना मिले, ये फेज़ आपकी स्टीम ही बनी रहे। क्यों ऐसा चाहते हैं, इसके बारे में हम अभी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये जो आपका चार पॉइंट्स हैं, इनको हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं वापस से इस सारी बातों को दोहराऊंगा। और ओके। सो पॉइंट नंबर वन पे जो आपका लो प्रेशर लो टेम्परेचर का वाटर था, उसको हमने एक पंप का यूज़ किया। ये पंप जो है, बिल्कुल आप सभी जानकार हैं, पंप के बारे में आपको अवेयरनेस है। हम हमारे डोमेस्टिक पर्पसेस में भी पंप को यूज़ करते हैं, वाटर को अंडरग्राउंड वाटर टैंक से ओवरहेड वाटर टैंक में वाटर को शिफ्ट करने के लिए। तो हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम जो है प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं।
तो पर्पस जो है वो प्रेशर इंक्रीज करना है ताकि वो ज़्यादा ऊंचाई तक भी जा सके या फिर वो हाई प्रेशराइज्ड वाटर किसी और काम में आ सके। ठीक है। तो यहाँ पर हमने हाई प्रेशराइज्ड वाटर को हमने बॉयलर में जो है सेंड कर दिया है। बॉयलर में क्या हो रहा है, आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है। बॉयलर में हमको कंबशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो आप कंबशन करते हैं बॉयलर में, उसके लिए आपको एयर की रिक्वायरमेंट है। और हमने इसको पहले अच्छे से पढ़ा है कि जो एयर होती है ये प्री हीटेड होती है। प्री हीटेड क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर वगैरह है इसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत हीटअप हो जाए ताकि फर्नेस में ये फुल्ली सपोर्टिव रहे और खुद एनर्जी गेन ना करे। और ये प्री हीटेड एयर जब ये फ्यूल के कॉन्टैक्ट में आती है और हम बर्निंग देखते हैं तो यहाँ पर कंबशन होता है। सो कंबशन हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इस वजह से हमें एयर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, उससे एनर्जी रिलीज़ हुई बहुत ज़्यादा अच्छे से। जितनी हम एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ कर पाते हैं उतनी ही हम हाई टेम्परेचर को अचीव कर सकते हैं। तो ये काम जो है हमें बॉयलर में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपने जो फ्लू गैसेस थी, फ्लू गैसेस की हेल्प से वाटर को हीट अप कर दिया। यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसेस पॉसिबल है। ये वाटर ट्यूब बॉयलर्स भी अगर हो तब भी ये पॉसिबल है, और ये फायर ट्यूब बॉयलर्स भी हो तब भी ये पॉसिबल है। प्राइमरीली जो फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें ऐसा दिख रहा है कि ये वाटर ट्यूब बॉयलर्स के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। तो अज्यूमिंग दिस दैट दिस इज द वाटर ट्यूब बॉयलर, और फ्लू गैसेस इसके सराउंड कर रही है और इसको हीट अप कर रही है, एंड वाटर इज कन्वर्टेड टू स्टीम। ओके, एंड मे बी कन्वर्टेड टू द सुपर हीटेड स्टीम एंड ऑल। ओके, ऑल राइट। तो आफ्टर दैट ये जो आपका यहाँ पर फ्लू गैसेस है, फ्लू गैसेस चिमनी से बाहर की ओर चली जाती है। चिमनी को थोड़ा सा समझते हैं। तो चिमनी में शेप जो है आपने कभी देखा भी हो, तो यहाँ पर आपको भी दिख रहा है कि ये ग्रेजुअली डिक्रीज्ड डायमीटर का शेप है। तो चिमनी हमेशा ऐसे कुछ शेप की बनी होती है जिसमें डायमीटर डिक्रीज हो रहा होता है ऊपर जाने पर। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है, वाई दिस इज ऑफ दिस शेप। तो बहुत बेसिक सा पर्पस है और बेसिक सा रीज़न है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स के केस में जो एरिया जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है। ओके, और जैसे जैसे एरिया कम होता है प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी बात आपको थोड़ा समझ में आ गई होगी, और आप शायद ये समझ पाए होंगे कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो क्लियर है या नहीं। और आपको पता है कि यहाँ पर ये एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर हाई प्रेशराइज्ड फ्लू गैसेज यहाँ पे आएगी। और आपको ये भी पता है कि अगर हम किसी एक्सटर्नल फोर्स की बात ना करें तो अपने आप से जो फ्लूइड फ्लो होने वाला है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने आप से जो फ्लूइड फ्लो है उसकी वजह से ये जो फ्लू गैसेज है ऊपर की ओर मूव करेगी, और हम कोशिश करते हैं कि इनकी हाइट अच्छी खासी हो ताकि एनवायरनमेंट में इनको काफ़ी ऊंचाई तक हम फ्लू गैसेस को रिलीज़ कर सकें। उसका पर्पस ये होता है कि ये अगर हम इसकी हाइट को कम रखते हैं तो ये बहुत जल्दी से एयर में घुल जाती है, और उससे काफ़ी लोग जो आसपास के रीजन में रहते हैं उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो अगर हाइट ऊपर रखेंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि ये काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट जब होगी एयर, और नीचे सेडिमेंटेशन इसका होगा कार्बन पार्टिकल्स वगैरह का, तो वो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो परसेंटेज ऑफ पोल्यूशन जो है कंपेरेटिवली काफ़ी लेस होगा। एक और चीज़ हम यहाँ पर करते हैं पोल्यूशन के लेवल को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए, तो यहाँ पर हम ईएसपीस का यूज़ करते हैं। ईएसपी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इनका यूज़ इसलिए किया जाता है कि ये गैस को जो है आयनाइज कर देते हैं, और उसके बेनिफिट हमें ये देखने को मिलता है कि ये फ्लूइड गैस को जब फ्लाई ऐश को यहाँ से कैप्चर करने के लिए किया जाता है। तो फ्लाई ऐश को कैप्चर क्यों किया जाता है? काफ़ी सारी जो ऐश है, जो राख है, वो फर्नेस में हमें नहीं मिलती है ऐश पैन में, जबकि वो फ्लू गैसेस का जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से उनके साथ ही काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की, और जो फ्लाई ऐश के मॉलिक्यूल्स है वो फ्लू गैसेस के साथ में मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं। So to prevent this, we need to use some ionization of gases so that we find here a very ample amount of fly ash deposited at the electrodes. So benefit हमें ये होता है कि काफ़ी सारी फ्लाई ऐश को हम यहीं पर कैप्चर कर पाते हैं और एनवायरनमेंट को पल्यूट होने से बचा लेते हैं। एंड एज अ इंजीनियर दिस इज़ अ वेरी required parameter for us to not to disturb the environment, okay, because of the our running devices. Okay, so probably you got the funda of boiler। यहाँ पर ये हाई प्रेशराइज्ड हाई टेम्परेचर की स्टीम बन गई है आफ्टर द बॉयलर।
और इसको अब हमें हार्नेस करना है, तो हमने टरबाइन को भी पढ़ लिया है। नोजल की हेल्प से हम इस स्टीम को, जो कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला ड्राई स्टीम है प्रोबेबली, इसको हम नोजल की हेल्प से टरबाइन की ब्लेड्स पर इम्पैक्ट करते हैं और रिएक्शन टरबाइन के थ्रू यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन टरबाइन है या फिर इम्पल्स टरबाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी हार्नेस करने की टेंडेंसी रखते हैं। और यहाँ से जो एनर्जी हार्नेस जब होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई प्रेशर लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है और हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और स्टीम काफ़ी हद तक स्टीम बने रहती है और हम चाहते भी हैं स्टीम बनी रहे, ऐसा मैंने पहले भी कहा था। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टरबाइन है वो आपकी थर्मल पावर प्लांट का सबसे कॉस्टलियर डिवाइस है। ठीक है। और ये इतना महंगा है कि अगर इसमें हल्का सा भी कहीं पर आपको डैमेज देखने को मिलता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा मॉनेटरी लॉस है और वो बहुत बड़ा एफिशिएंसी में भी लॉस देने वाला है प्लांट की। तो यहाँ पर हम हमेशा ये चाहते हैं कि टरबाइन की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा रहे। तो टरबाइन की ब्लेड्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रिमेनिंग पैरामीटर्स उतने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते हैं जितना कि ब्लेड्स को आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लेड्स में जो एंगल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ब्लेड्स की थिकनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है। और अगर ये स्टीम अगर कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर में कन्वर्ट हो जाए और आपको लिक्विड यहाँ पर मिल जाए इंस्टेड ऑफ स्टीम, तो क्या होगा, वो जो लिक्विड है वो कोरोजन क्रिएट कर सकता है टरबाइन की ब्लेड्स पर। तो इस कोरोजन को होने से बचाने के लिए हम हमेशा ये चाहते हैं कि ये स्टीम जो है ये स्टीम फॉर्म में ही कन्वर्टेड स्टीम फॉर्म में ही रहे, ना कि ये वाटर में कन्वर्ट हो। फिर भी ये देखा गया है कि प्रैक्टिकली हम 85 टू 90% स्टीम में ही कन्वर्जन रहता है और अराउंड 5 टू 10% और 10 to 15% जो है वो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर दी प्रोसेस इन दी टरबाइन। और उसको भी थोड़ा फेवरेबल माना गया कि कोई बात नहीं, उतना भी मैनेज किया जा सकता है। तो 10% से ज़्यादा अगर स्टीम वाटर में कन्वर्ट होती है तो वो टरबाइन की लाइफ को काफ़ी हद तक फ्रीक्वेंटली डैमेज करती है। ठीक है। ओके। और जिस पैरामीटर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ये जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं और ये हमें बताता है कि कितने अमाउंट ऑफ जो आपका स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया है। इसका फॉर्मूला बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा इजी है। ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है देखिए ज़रा इसको। तो दिस फॉर्मूला शोज एक्स इज इक्वल टू एम वी बाई एम वी प्लस एम एल। mv is the mass of vapor, mv is the mass of vapor here also, and mass of liquid is this. So the total mass of the steam entered in the turbine is this. इसमें से कितनी जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, और कितनी वेपर बनी रही। तो अगर मान लीजिए पूरी की पूरी अमाउंट वेपर ही बनी रही तो ये आपका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, या फिर मैं उसे 100% कह सकता हूँ। ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू में कमी आ गई, जैसे कि मान लीजिए 10% आपका लिक्विड बन गया है, तो इसकी वैल्यू 90% हो जाएगी या 0.9 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके। सो दिस में बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और वैल्यूज इक्वल टू और लेस देन यूनिटी। ओके। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द ड्राइनेस फ्रैक्शन और क्वालिटी ऑफ स्टीम। इसको हम क्वालिटी ऑफ स्टीम भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा जो नाम है इसका वो है ड्राइनेस फ्रैक्शन। ओके। तो ये प्रोबेबली टरबाइन के बारे में भी आपने समझ लिया है। और अब हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं और वो है कंडेंसर। तो ये कंडेंसर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंडेंसर का मेजर पर्पस होता है, दिस इज नथिंग बट अ हीट एक्सचेंजर एंड इट इज एम वी जो है वो मास ऑफ वेपर है, एम एल जो है वो मास ऑफ लिक्विड है। ठीक है। यहाँ पर आपका जो 4 to 1 हम कर रहे हैं ये कंडेंसर में हो रहा है। अब कंडेंसर क्या है इसको थोड़ा ध्यान से समझें। तो कंडेंसर इज अ डिवाइस विच इज नथिंग बट अ हीट एक्सचेंजर एंड इट इज जस्ट लाइक अ बॉयलर। बॉयलर भी एक हीट एक्सचेंजर ही था, कंडेंसर भी एक हीट एक्सचेंजर ही है। ध्यान रखने की बात है कि बॉयलर में हम हीट एक्सचेंज कर रहे थे हीटिंग करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। यहाँ पर हम हीट एक्सचेंज कर रहे हैं टेम्परेचर कम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा हो कि मैंने यहाँ पर भी लो टेम्परेचर लिखा है, यहाँ पर भी लो टेम्परेचर लिखा है, तो आप कहेंगे सर टेम्परेचर तो कम हो नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हम हीट रिलीज कर रहे हैं बट टेम्परेचर रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जबकि पिक्चर में लेटेंट हीट आती है, तो हम एक्चुअली लेटेंट हीट को रिलीज करना चाह रहे हैं।
ओके। और आप सभी को पता है कि लेटेंट हीट का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू सेंसिबल हीट। तो हमें एक बहुत बड़े अमाउंट ऑफ हीट रिलीज की रिक्वायरमेंट है ताकि हम इस स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट कर पाएँ, वाटर में कन्वर्ट कर पाएँ। तो ये कैसा होता है? ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये जो आपकी स्टीम यहाँ से आ रही है, ओके, ये स्टीम जो यहाँ से आ रही है, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, कूल्ड वाटर की कॉइल्स के थ्रू इस स्टीम को पास करवाते हैं, और ये जब ये हीटेड हो जाती है तो हम इसको भेज देते हैं कहाँ पर? कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि आप थोड़े, इसकी हाइट काफ़ी अच्छी खासी होती है, ठीक है, और अच्छी खासी हाइट वाले कूलिंग टावर्स हुआ करते हैं। और आप लगभग 10-15 मीटर ऊंचाई वाली एक पाइप से इसको हॉट वाटर जो यहाँ पर आपको मिला टरबाइन के बाद में जो स्टीम थी उसको ठंडा करने के लिए जो गया था वो अब गर्म हो चुका है, और हॉट वाटर को आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ स्प्रे और द इंजेक्टर्स, आपने इसको अभी स्प्रे की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और ये जब स्प्रे हो गया है हॉट वाटर का, तो क्या होगा स्प्रे होने से? दो बातें होगी। पहला तो यहाँ पर एक जो बड़ी ड्रॉप है, एक बड़ी ड्रॉप का छोटी छोटी बूंदों में टूटना अपने आप से काफ़ी सारी हीट को रिलीज करता है। ऐसा कभी आपने फील किया होगा, आई होप। आप जब सैलून जाते हैं और वहाँ पर जो बार्बर है आपकी हेयर ट्रिमिंग करने से पहले वाटर स्प्रे करता है हेयर्स के ऊपर, कई बार वो आपके फेस के ऊपर भी स्प्रे गिर जाता है तो आपको काफ़ी कूलिंग फील होती है। तो दैट शोज़ कि यहाँ पर ये जो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट हुआ है। एक बड़ी ड्रॉप जब छोटी छोटी ड्रॉप्स में टूटती है तो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात जो यहाँ पर होती है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें यहाँ पर नीचे से एयर का पाथ जो है वो ओपन होता है, तो नीचे से एयर जो है वो सिस्टम में एंटर कर सकती है। जालियाँ लगी होती है और इन जालियों से जो एयर है उसका एंटरिंग यहाँ से होता है। तो एयर विल मूव फ्रॉम दी बॉटम, और ये एकदम बॉटम नहीं है क्योंकि ये नीचे यहाँ पर टैंक में पानी भरा होता है, तो यहाँ पर ये पानी भरा है, और पानी के ऊपर ही यहाँ पर साइड में जालियाँ लगी होती है जहाँ पर ये एयर का मूवमेंट पॉसिबल होता है। ये इस फिगर में भी दिख रहा था लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ा बड़ा कर लिया ताकि ये क्लियरली मैं रिप्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। तो एयर यहाँ से अंदर गई, ठीक है, एनवायरनमेंट से एयर। और आप सभी को पता है कि यहाँ पर एरिया ज़्यादा दिख रहा है, प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर एरिया कम है, प्रेशर कम होगा। तो अपने आप से एयर का मूवमेंट किधर होने की टेंडेंसी होगी? ऊपर की ओर जाने की, टूवर्ड्स द लो प्रेशर। तो एयर नेचुरल फ्लो की वजह से नीचे से अपने आप से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये इतना ज़्यादा एरिया रखा जाता है कि बहुत अबंडेंस में एयर का फ्लो होता है। और ये जो एयर नीचे से ऊपर जा रही है वो अपने साथ में क्या करेगी कि जो स्प्रे आपने किया है वाटर का, हॉट वाटर का स्प्रे किया है, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स को ये एब्जॉर्ब कर लेगी, और उनको भी कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अपनी हीट, उनकी हीट एब्जॉर्ब करके और अपने साथ ले जाएगी। और जो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर की ड्रॉप्स में वो भी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे इस कंपेरेटिवली कूलर एयर के कांटेक्ट में आने के कारण। ऐसा करने से क्या होगा, जब एक मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होता है तो काफ़ी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब एक मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो आसपास के एनवायरनमेंट को वो कूल कर रहा है। तो ऐसा तीनों चारों प्रोसेस की वजह से, पहला प्रोसेस क्या हुआ, एक बड़ी बूंद का छोटी बूंद में टूटना। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ, इस एम्बियंट एयर का नीचे से ऊपर की ओर जाना, और इस दौरान इस हॉट वाटर की एनर्जी को भी थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेना। तीसरा प्रोसेस क्या हुआ कि कुछ हॉट वाटर की ड्रॉप्स को भी अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेना। और चौथा प्रोसेस ये हुआ कि हॉट वाटर की जो ड्रॉप्स थी उनका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। ऐसा होने से आसपास के एनवायरनमेंट को वो कूल कर देता है क्योंकि उसे वेपर में कन्वर्ट होने के लिए काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से काफ़ी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और एनवायरनमेंट को कूलर कर देता है। ओके। तो ऐसा होने की वजह से यहाँ पर ये जब चारों प्रोसेस मिक्स्ड फॉर्म में होते हैं तो आ, ये जो स्प्रेड वाटर था जब ये नीचे गिरता है और इस टैंक में आता है, कूलिंग वाटर टैंक, कूलिंग टावर के टैंक में जब आता है तो ये काफ़ी ठंडा हो चुका होता है। और इस ठंडे पानी को हम पंप से वापस से सर्कुलेट करवाते हैं, कहाँ पर? कंडेंसर में। कंडेंसर में ट्यूब्स में जाता है ठंडा पानी, वापस से सर्कुलेट होता है, स्टीम को वाटर करने में काम में आता है और खुद गर्म हो जाता है, वापस से सेम प्रोसेस चलता है। और इन दिस वे ये कंटिन्यूअसली कूलिंग होती रहती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई।
ठीक है, हम लोगों ने चारों डिवाइसेस को पढ़ लिया है। हम लोगों ने बॉयलर और स्टेक को पढ़ लिया है, हम लोगों ने कूलिंग टावर को पढ़ लिया है। टरबाइन से जो एसोसिएटेड है आपका इलेक्ट्रिकल जनरेटर, उसको हमने थोड़ा समय नहीं दिया, तो अब हम उसकी बात करते हैं। तो ये टरबाइन जब मैकेनिकल एनर्जी में प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, तो उस केस में आप क्या देख रहे हैं कि रोटेशनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एक रोटरी मोशन प्रोड्यूस कर रही है। और आप लोगों ने 11th-12th में फिजिक्स में काफ़ी हद तक ये पढ़ रखा है कि इस दौरान क्या होता है, जब रोटरी मोशन आपको मिलता है तो आप यहाँ पर फ्लक्स जनरेट करते हैं, और उसकी हेल्प से आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की दिशा में कदम रखा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर। और ये इलेक्ट्रिकल जनरेशन होता है, उसके बाद में हम ट्रांसफार्मर में इसको भेज देते हैं। देन इट गोज़ टू दी पावर केबल एंड दी अदर पावर सिस्टम्स जहाँ पर कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके। ओके, तो दिस इज द मेन पर्पस, दिस इज द मेन आउटपुट ऑफ आवर स्टीम पावर प्लांट। आई होप you all got the funda. Okay, so now next we move to the some analysis of the Rankine power cycle. Now, what is the Rankine power cycle? It is nothing but the power cycle on which the steam turbine power plants depends. Okay, so the analysis of Rankine power plant is very important to discuss. ओके, यहाँ पर नंबरिंग कुछ अलग है, कोई बात नहीं, अब हम उसको रिकंसिडर करके समझ लेंगे। और ये आपको बुक टू बुक काफ़ी अलग भी लग सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि आप जिस नंबरिंग की बात कर रहे हैं वो आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, ओके। तो पहले हम ये लेफ्ट में जो ये साइक्लिक डायग्राम है, इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये 1 to 2 आपने फीड पंप का यूज़ किया, फीड वाटर पंप या फिर फीड पंप या फिर ओनली पंप। यहाँ पर आप वाटर को प्रेशराइज कर रहे हैं, जो कि P2 बार प्रेशर पर जो आपका वाटर अवेलेबल था, अब आपने उसको P1 बार प्रेशर पर ले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही प्रेशर्स अवेलेबल है, क्योंकि इसकी अब भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, सो P1 से P2 आप 1 से 2 पॉइंट पर गए तो आपको ये मिल गया। 2 से इस पॉइंट को मैं 3 बोल देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो से दिस पॉइंट इज 3, और ये आप 2 to 3 आपने अचीव किया विद द हेल्प ऑफ बॉयलर। बॉयलर में आप क्या करते हैं कि आपने पहले सेंसिबल हीटिंग की ताकि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक अचीव हो सके। उसके बाद में आपने लेटेंट हीटिंग की ताकि ये जो सारी की सारी बॉइलिंग पॉइंट पे अचीव हो चुका लिक्विड है, वो अब वेपर में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद में अगर आप सुपर हीटिंग करते हैं तो फिर वहाँ पर आपको वापस से सेंसिबल हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पर आप आ, इस सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीटेड ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो at 3 you will get the high pressure high temperature steam and probably the superheated dry steam. Okay, ये पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर है आपका। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 ये है। इसके बाद में आपने स्टीम को भेज दिया टरबाइन में। ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली जो स्टीम है, ये टरबाइन में जाती है, वहाँ पर इसका एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन के दौरान आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वो हमने जनरेटर में भेज दिया है जो पावर हमें मिला था। ओके, विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट कनेक्टेड टू दी जनरेटर। और ये जो टरबाइन के बाद में आपको जो लिक्विड सॉरी स्टीम मिला है, जो फ्लूइड मिला है, वो हाई टेम्परेचर का ना हो के लो टेम्परेचर का है, हाई प्रेशर का ना हो के लो प्रेशर का है, और वो काफ़ी हद तक स्टीम है। सॉरी। तो ये आपकी वेट स्टीम होती है। वेट स्टीम इसलिए क्योंकि इसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं पॉइंट नंबर 4। 4 के बाद में आप जो ये कंडेंसर से इसको पास करते हैं, कूलिंग वाटर आता है कूलिंग टावर टैंक से, और कंडेंसर में ये स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने की इसकी टेंडेंसी होती है, और उसके बाद में सैचुरेटेड वाटर को हमें सप्लाई कर देता है। इसके बाद में यहाँ पे हॉट वेल रिप्रेजेंट कर रखा है। हॉट वेल का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि हम थोड़ा सा आ, इस वाटर को हीट अप कर लें, या फिर इस वाटर को स्टोर कर लें। जो आपको यहाँ पर ये स्टीम से वाटर कन्वर्ट हुआ है, इसको हम यहाँ पर स्टोर कर लें, और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको पंप से हम आगे पास कर दें। ठीक है, क्योंकि पंप से आप पूरे का पूरा वाटर एक साथ पास कर पाएँ ये ज़रूरी नहीं है। तो ये एक तरह से स्टोरेज टैंक है। ओके, नाउ we talk about the right side graph, which is very important, which is plotted between temperature and entropy.
ठीक है। यहाँ पर ये जो कर्व है इसमें ये ग्रीन लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये ग्रीन लाइन क्यों है और इसका मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ताकि ये फिगर जो है हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो इस तरह की लाइंस होती है इसको हम बोलते हैं वेपर डोम। दिस इज नोन एज वेपर डोम। ठीक है। तो ये जो वेपर डोम है इसका आ, क्या पर्पस है, तो वेपर डोम हम बोलते हैं एक ऐसे फिगर को जो कि वेपर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। और बेसिक इंफॉर्मेशन क्या दी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो पीक पॉइंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीपी से। अब ये सीपी क्या है, दिस इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर आपका लेटेंट हीट ज़ीरो होता है। ओके। या फिर मैं कहूँ कि इसी एक पॉइंट पर आपका सैचुरेटेड लिक्विड स्टेज और सैचुरेटेड वेपर स्टेज दोनों एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर लिक्विड और वेपर दोनों प्रेजेंट है। या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर लेटेंट हीट जो है वो ज़ीरो है, या फिर एक पॉइंट पर अवेलेबल है बस। ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट ही मैंने पहले क्यों बताया, इसको थोड़ा समझते हैं। इसकी जो लेफ्ट साइड में जो आपको लाइन दिख रही है ये वाली, तो क्रिटिकल पॉइंट की जो आपको लेफ्ट साइड में जो लाइन दिख रही है वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। अब ये सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सैचुरेटेड को थोड़ा सा समझते हैं। आप लोगों ने हिंदी में काफी बार ये कुछ कहावत सुनी होगी, एक तो पेट भर होना और एक भर पेट होना। ठीक है। आप जब खाना वगैरह खाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, मैंने पेट भर खा लिया, मतलब मैंने थोड़ा सा भोजन कर लिया जितना मेरे को आ, ओके लगता है। लेकिन अगर आपने बहुत ही आपकी कोई स्वादिष्ट या मनपसंद चीज़ बनी थी तो आपने क्या उसे बहुत सारा खा लिया, पेट भर, अब और नहीं खा सकते। तो ये उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, सैचुरेटेड, ये भर पेट वाली सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सैचुरेशन मीन्स नाउ नो मोर इज पॉसिबल। ठीक है। वैसे ही ये है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, मतलब यहाँ पर जो भी सब्सटेंस अवेलेबल होता है वो अभी अप, अपनी लिक्विड स्टेज में अवेलेबल होता है। इसके ऊपर जो भी सब्सटेंस होगा वो उसमें स्टीम नहीं होगी, उसमें वेपर नहीं होगी। ऐसे ही जो राइट साइड में आपको लाइन दिख रही है इस क्रिटिकल पॉइंट के, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड वेपर लाइन। और इसका बिल्कुल वही मतलब है कि यहाँ पर जो आपको अवेलेबल हो रही है सब्सटेंस वो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ वेपर फॉर्म में ही है, और इस पे आपको बिल्कुल भी लिक्विड अवेलेबल नहीं होगा। इसके बीच में जो होगा, इस लाइन के बीच में यहाँ पर या कहीं और, वहाँ पर आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा, थोड़ा मॉइस्चर और थोड़ा वेपर, थोड़ा स्टीम थोड़ा वेपर। तो यहाँ पर आपको एल प्लस भी देखने को मिलेगा, एल मीन्स लिक्विड और वी मीन्स वेपर, तो एल प्लस भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जब भी एल प्लस भी देखने को मिलता है, फेस चेंज हो रही होती है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हीटिंग होगी वो प्योरली लेटेंट हीटिंग ही होगी। ठीक है। ओके। नाउ वी नीड टू डिस्कस द फिगर। तो अब इस फिगर को अब हम समझ सकते हैं। तो ये आपका वेपर डोम है, यहाँ पर कहीं आपका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है। और अब हम इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 to 2 आपका जो है वो पंप है। पंपिंग के थ्रू आपने प्रेशर बढ़ा दिया है, और ये मैंने कहा कि बहुत ही नेग्लिजिबल टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट होता है। तो ये टेम्परेचर में भी थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर, और प्रेशर भी बढ़ गया है। ठीक है। प्रेशर अच्छा खासा बढ़ गया, काफ़ी हद तक बढ़ गया, जिसको आप यहाँ पर देख नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ, प्रेशर लाइंस जो है वो वेपर डोम की इधर वो कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करती है, इस तरह से। टेम्परेचर लाइंस जो है वो ऐसे हैं, एंट्रोपी लाइंस ऐसे वर्टिकल है, और प्रेशर लाइंस ऐसे हैं। तो एक प्रेशर लाइन ये वाली है, और ऐसी दूसरी प्रेशर लाइन ये वाली है जो ब्लैक है। हमने पॉइंट नंबर 2 से इसको बॉयलर में एंट्री करवाया। सबसे पहले बॉयलर में जब ये लिक्विड गया तो पहले इसका टेम्परेचर बढ़ा, कब तक बढ़ा, जब तक ये अपने बॉइलिंग पॉइंट को नहीं पहुंच गया। इसके बाद में तो यहाँ पर ये जो हीटिंग होगी, कौन सी हीटिंग होगी, दिस विल बी सेंसिबल हीटिंग ओनली। ये मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी टेम्परेचर इंक्रीमेंट होता है वो सिर्फ सेंसिबल हीटिंग होती है।
पॉइंट नंबर यहाँ पर मैंने इसको 3 नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने इसको बॉयलर ही कहा है और बॉयलर में मैंने इसको आ, यहाँ पर 3 कहेंगे हम, और यहाँ पर 4 कहेंगे। आप दोनों फिगर्स को कोरिलेट कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये सेंसिबल हीटिंग हुई। इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक जब आप हीटिंग कर रहे हैं तो ये लेटेंट हीटिंग है। लेटेंट हीटिंग है मतलब फेज चेंज है, और ये एल प्लस वी जोन में हो रही है। तो एल प्लस वी जोन में जो हीटिंग हो रही है ये डेफिनेटली लेटेंट हीटिंग है, और यहाँ पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये सैचुरेटेड लिक्विड था यहाँ पर इस पॉइंट पर, और ये यहाँ पे आते आते सैचुरेटेड वेपर लाइन पर अब ये पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ लेटेंट हीटिंग। ठीक है। और ये सेंसिबल प्लस ये वाली जो लेटेंट हीटिंग है, इसकी हेल्प से आपने बॉयलर में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और स्टीम अचीव कर लिया है। इसके बाद में टरबाइन में गया। टरबाइन में एक्सपेंशन हुआ, पॉइंट नंबर 3 से 4 एक्सपेंशन हुआ। तो आपने यहाँ पर देखा कि इसमें एंट्रोपी, यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, ध्यान रखें। सो द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट हियर, क्योंकि ये एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और आपको मैंने बताया था पहले भी कि जो भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे आइसेंट्रोपिक होते हैं। तो ये जो 1 to 2 है ये भी आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है। और जो ये 3 to 4 है ये भी आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है। ओके। तो ये जो आपका 3 to 4 है, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, आपको एनर्जी मिली यहाँ से, या फिर मैं कहूँ कि डब्लू टरबाइन आपको वर्क मिला, जबकि आपने पंप में जो काम किया था वो डब्लू पंप काम आपने खुद ने किया था। और आप खुद जानते हैं कि जो वर्क मिलता है वो हमारा नेगेटिव हो, सॉरी, जो वर्क हमें मिलता है वो वर्क पॉजिटिव होता है, और जो वर्क हम सिस्टम पर करते हैं वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो हमें ये वर्क हमने किया था डब्लू पंप, ये हमारा नेगेटिव वर्क था, और जो हमें टरबाइन में वर्क मिला है ये पॉजिटिव वर्क है। तो यहाँ से आपको देख के भी समझ में आ रहा है कि डब्लू टरबाइन काफ़ी ज़्यादा है इन कम्पेयर टू डब्ल्यू पंप। सो दैट्स वाई इट इज़ अ बिजनेस ऑफ प्रॉफिट। ओके। तो ये 4 to 1 जो है यहाँ पर आपका फेज चेंज हो रहा है, नो टेम्परेचर चेंज, ओनली फेज इज चेंजिंग, एंड दिस इज हैपनिंग इन द कंडेंसर। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल